Before Tiger Baby came into the picture, Varun Grover and me worked on a short film. And while shooting for that short film, Varun bhai had told me कि ऐसी एक feature मैंने लिखी है जो मालेगांव पे based है. And would you be interested in playing Nasir? एक इंटरव्यू में आपने कहा था कि आप मालेगांव गए, you shot something over there. Switzerland, France, multiple countries में shoot हुई है ये serial. I think it was one of the first serials from India to go international. I wanted to talk about White Tiger only. हम चांदनी चौक के अंदर बहुत ही एक बिजी सड़क के अंदर हम शूट कर रहे थे और वो पहला टेक में एक्चुअली मैंने क्या किया था कि तो मैंने पतीला उठा के उनके चेहरे के यहाँ से घुमाया. उनको नहीं पता था कि मैं ये करने वाला हूँ. तो जब कट हुआ तो वो बहुत डर गई थी. उनको लगा कि मैं शायद सही में कुछ कर दूंगा उनको या पागल हो गया हूँ मैं. Then what happened? Why did you leave hostel days? I think for me it was just a matter of like I didn't know what else I could frankly contribute to Ankit's character. What makes Rajan Digwe so great? सांस ही नहीं लिया है भाई. फैमिली मैन सीजन 1, सीजन 2, फर्जी, गुलकंदा टेल्स, गन्स एंड गुलाब, सिटाडेल, कितनी चीजें बना ली है 5 साल में. You played a young Shah Rukh. That was my first film. That was the first film. How was that? यार that was तो साउथ इंडियन खाना जमशेदपुर का is better South Indian food than and it's a very Controversial. Be careful. ना आए हो ना आओगे न फोन पे बुलाओगे न शाम की करारी चाय लबों से यूं पिलाओगे. Hello and welcome to yet another episode of Unfolding Talents. आज हमारे पास एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एक्टर है. क्यों? क्योंकि ये BAFTA नॉमिनेटेड एक्टर है और वो हारे भी किससे? एंथनी हॉपकिंस से. हमने उन्हें लास्ट देखा था गन्स एंड गुलाब्स में, फिर खो गए हम कहाँ में, एंड नाउ ही हैज अ न्यू रिलीज कॉल्ड सुपर बॉयज ऑफ मालेगांव. सो प्लीज वेलकम टू आवर शो आदर्श गौरव. थैंक यू अंकित. एक्चुअली वो इंस्टाग्राम पे हैंडल ऐसा क्यों और रियल लाइफ में ऐसा यार क्योंकि मिला नहीं ऐसा कुछ था. हाँ लाइक अगर आदर्श गौरव नहीं मिल रहा है तो गौरव आदर्श कर लेता हूँ. एंड इट्स लेड टू द बिगेस्ट कंफ्यूजन ऑफ माय लाइफ. हाँ ना. Which has now become like every time somebody meets me, the first question they're like, okay, how do we address you? Yeah. How's your headspace, bro? I mean, you got nominated for BAFTA, right? First time I am interviewing somebody who's nominated for BAFTA. And you lost to whom? Mr. Anthony Hopkins. Mr. fucking Anthony Hopkins. Yeah. मतलब अभी और क्या चाहिए लाइफ में? And then you had your good releases this year. You had खो गए हम कहाँ. And now you have Super Boys of Malegaon. क्या headspace है? What are you thinking? क्या चल रहा है दिमाग में? Tell me about that. Yeah, to be very frank with you, I usually am not somebody who wants to think too much. So I just constantly try to find ways in just to keep my mind and body occupied. तो कुछ ना कुछ मैं करते रहता हूँ, you know, but I don't sit and wander in my head or gloat too much कि अरे ये हो गया या ये होना है या कुछ. Because वो अपना काम है वो कर लिया, वो खत्म हो गया मेरे लिए. Of course, I'm always excited about things that release. I'm very excited and very proud about Superboys of Malegaon. Proud of Superboys of Malegaon. This is your second collaboration with Tiger Baby. Yes, it is. After खो गए हम After कहाँ. हो गए. Yeah. तो ऐसा कुछ वीडियो रखे हो क्या? कुछ ऐसा है कि you've been casted in something like that? नहीं यार, I feel like I'm very lucky that I got to work with them twice because they've always been one of those production houses that every actor dreams of working with and collaborating with because they're very ethical, they back the right kind of stories, they work with wonderful directors, with wonderful writers, including Superboys of Malegaon, which was actually, before Tiger Baby came into the picture, Varun Grover and me worked on a short film called Kiss, which we made in 2021 January. We shot right a week before White Tiger had released. Okay. And while shooting for that short film, Varun bhai had told me कि ऐसी एक feature मैंने लिखी है जिसका नाम जो मालेगांव पे based है और वहाँ की industry पे based है. And then I said कि हाँ मैंने एक documentary देखी है फैज़ा की, फैज़ा खान की, Superman of Malegaon. And he was like हाँ मतलब it's basically Nasir's story. And would you be interested in playing Nasir? Oh. And I was like yeah, I mean you know यही तो सुनना था. भाई मतलब you know Varun Grover also is somebody I have so much respect for and been following him for over such a long time. So it was just like one of those moments where you know you have to pinch yourself and be like wow, this is really happening to me. And then Varun Grover is someone you're going to remember for years and years to come, you know, Yeah. with the kind of work that he's yeah and stuff. And what a so- solid body. And even with Reema Khakdi and Absolutely, man. Absolutely, it's crazy. Yeah. You know, I was watching your interviews. तो एक इंटरव्यू में आपने कहा था कि आप मालेगांव गए Hmm. and then you shot something over there. Hmm. Can you tell us about that?
So, once I was cast for it, it was still 2 months before shoot was going to start, and मैं बैठ नहीं सकता हूँ स्थिर, मतलब स्क्रिप्ट तो एक चीज़ है जहाँ पे आप कहानी पे काम कर रहे हो, बट I always try to think how else do I kind of understand this world better, right? So like initially I started with taking Urdu lessons. So I took a few Urdu classes and stuff, and then I said why not go to Malegaon, because anyway जो वहाँ की जो लहजा है और भाषा है वो बहुत specific है, which is an amalgamation of, तो मतलब basically Malegaon's population comprises of a lot of immigrants from Hyderabad and a lot of immigrants from UP. ओके A lot of these people immigrated to Malegaon in the early to mid 20th century because वहाँ पे मिल्स खुले थे, और अभी भी उनकी जो इकोनॉमी है वो मिल से ही ड्राइव होती है, ओके पावरलूम मिल से, और पहले हैंडलूम थी, अब वो पावरलूम हो गई है. सो बिकॉज उनकी लेबर फोर्स की कमी थी, तो यूपी एंड हैदराबाद से बहुत सारे लोग वहाँ पे माइग्रेट हुए. तो उस कारण जो मिश्रण जो बनी है उनकी भाषा की, दैट्स अ वेरी यूनिक, इट्स गॉट अ वेरी यूनिक ट्वैंग एंड वेरी यूनिक साउंड. तो से लाइन नो तो जैसे ना मैं कर रहा, मैं जा रहा, अबे मैं जा रहा ना वहाँ, तो वो जा रहा है नहीं बोलते, कंप्लीट नहीं करते, जा रहा पे छोड़ देते, जा रहा ओके and the advantage of being cast before time is that you have time to actually think and experiment and do things. And when prep time पे ऐसी कोई होती नहीं है कि आप फेल हो सकते हो उसमें, because everything is an experiment, everything is a probability. तो कोई प्लान ऐसे था नहीं, बस प्लान ये था कि मालेगांव जाना है. और एक बार मैं वहाँ गया, नासिर से बात होने लगी मेरी, तो मैंने, और नासिर भाई क्या है कि started out as, he used to run a video parlor with his elder brother and his father, and then the video parlor shut, that business shut, and then he went on to making his films, which were basically parodies of popular Hindi films. And एम्बिशन है ना खतरनाक भाई, Next खतरनाक, level. रेवोल्यूशनरी. और मिड 2000s में ही डायरेक्टेड अ शो ऑन सब टीवी कॉल्ड मालेगांव का चिंटू, ओके जिसके मल्टीपल सीजन्स हैं, 3 या 4 सीजन्स हैं, जिसके सेकंड या थर्ड सीजन देव शॉट इन जर्मनी, स्विट्जरलैंड, फ्रांस, मल्टीपल कंट्रीज में शूट हुई है ये सीरियल. आई थिंक इट वाज वन ऑफ द फर्स्ट सीरियल्स फ्रॉम इंडिया टू गो इंटरनेशनल क्या बात and be shot there. हाँ. And then I think there was some turn of events that happened and Nasir decided to not direct anymore. तो अभी जो प्रेजेंट डे नासिर है वो एक होटल चलाते हैं वहाँ पे मालेगांव में, एंड उनके जो भाई हैं वो, उनकी एक कपड़े की दुकान है. तो नासिर से जब मैं मिला, नासिर भाई से वहाँ पे, तो मैंने कहा नासिर भाई आप पिक्चर बनाओगे क्या वापस, एंड ही डिडंट इवन टेक अ सेकंड टू थिंक एंड से यस. ही वाज जस्ट लाइक बिल्कुल बनाते हैं, आप बताओ क्या करना है. तो फिर मैंने कहा कि आप कुछ कहानी लिखो, या आपके दोस्तों से मिलके हम कुछ कहानी एक लिखते हैं, और मैं प्रोड्यूस करूंगा जितना भी जो भी है, वो शॉर्ट फिल्म बनाते हैं, क्योंकि मुझे आपको इन एक्शन देखना है एज अ डायरेक्टर, आप कैसे हो सेट पे. So then he agreed, and in 2 days we wrote a short film which was basically a mixture of कैसे बोल रहा, क्रांतिवीर एंड हेरा फेरी. क्या बात है तो वहाँ पे एक बहुत फेमस मिमिक्री आर्टिस्ट है मालेगांव के, वो कुछ 25-30 एक्टर्स की मिमिक्री करते हैं. तो ही ओनली प्लेड परेश रावल एंड ही ओनली प्लेड नाना पाटेकर. एंड हाँ, सेम टाइम, मतलब डिफरेंट टाइम्स ऑब्वियसली, बट इन द सेम शॉर्ट फिल्म. And shot it in a single day. He got somebody to DP it, and he was directing it, and he did the production design and the art as well. So it was just wonderful to see this man come back to direction after so many years, and to see him बतौर डायरेक्टर वो कैसे होते हैं सेट पे, क्या उनका एक अलग एनर्जी वो चैनलाइज करते हैं जब वो डायरेक्टर होते हैं, जो वो आपको आम तौर पे आम जिंदगी में एक बहुत ही सेटल्ड, बहुत एकदम, मतलब सुलझा हुआ सुलझा हुआ रिजर्व्ड आदमी, एंड सडनली यू गो ऑन सेट एंड ही इज लाइक एक्सट्रीमली हाइपर, वेरी ड्रिवन, वेरी फोकस्ड. तो मजा आ गया उनके साथ वो करने में. And while I was doing it, I produced it. I was an AD on set, and I also shot my own documentary on it. I wanted to talk about White Tiger only, especially a scene जिसमें you flip. वो एक बूढ़ी औरत और के ऊपर आती है, हाँ. you flip. क्या चल रहा था दिमाग में वो टाइम? ब्रीफ क्या था? और what did you do? Was it improvised? What was it? Yeah, it was fully improvised. वो सीन एक्चुअली स्क्रिप्ट में बस इतना था कि एक औरत आती है और वो पैसे मांगती है, और मैं उनको मना कर देता हूँ. लेकिन कहानी में बलराम उस पॉइंट पे होता है जहाँ पे उसके साथ बहुत गलत हो चुका है ऑलरेडी, और भरा पड़ा है वो अंदर से. तो मैंने रमीन को शॉट के पहले बोला कि रमीन मुझे ना कुछ और करना है इसमें. तो रमीन ने बोला कि मुझे मत बताओ क्या करना है, तुम्हें जो करना है करो, कैमरा तुम्हें फॉलो करेगी. तो हम चांदनी चौक के अंदर
बहुत ही एक बिजी सड़क के अंदर हम शूट कर रहे थे और मैं सड़क पे बैठा हुआ था और कैमरा एक दुकान के अंदर लगा हुआ था और अंदर लगा हुआ था और कोई लॉन्ग लेंस, असिस्टेंट्स, हाँ, लॉन्ग लेंस। लॉन्ग लेंस नहीं था, पीछे से बैक था और साइड, पहले उन्होंने पीछे से कवरेज लेना शुरू किया, फिर साइड से लेना शुरू किया। और क्योंकि बाकी क्रू सब छुपे हुए थे, क्योंकि हमें किसी को बताना नहीं था कि हम कोई शूटिंग वूटिंग बड़ी कर रहे हैं, वी डिडंट वांट टू ब्रेक द नेचुरल फ्लेवर ऑफ ऑफ चांदनी चौक, वहाँ पे इतनी जो भीड़ होती है ऑर्गेनिकली, जो लोग इधर से उधर जा रहे हैं अपने दिनचर्या में लगे हुए हैं, वो हमें तोड़ना नहीं था उस चीज़ को। तो उन्होंने गुरिल्ला स्टाइल उसको थोड़ा शूट किया। तो ऑफ कोर्स 1-2 लोग थे जिनको दिख गया था कैमरा, उनको एक बार उन्होंने पलट के देखा कि अच्छा कोई शूटिंग चल रहा है, बट अधिकतर लोगों को नहीं पता था कि शूट चल रही है। और वो औरत आई, उन्होंने मुझसे पैसे माँगे और मैं उन पे पूरा जो मेरा बेसिकली बलराम का जो जर्नी था उस टाइम तक जितना मैं भरा पड़ा था, मैंने पूरा उन पे उतार दिया। और वो पहला टेक में एक्चुअली मैंने क्या किया था कि चाय का एक पतीला में ना, वो चाय बन रहा था, मेरे बगल में चाय वाला बैठा था, तो एक पतीला था जो यूज़ था, तो मैंने वो पतीला उठा के उनके चेहरे के यहाँ से घुमाया, बहुत कैलकुलेटिवली, कि उनको ना लगे, पर यहाँ से घुमाया और उनको नहीं पता था कि मैं ये करने वाला हूँ। तो जब कट हुआ, वो एक्ट्रेस बहुत सीनियर थिएटर एक्ट्रेस हैं दिल्ली से, तो वो बहुत डर गई थी। उनको लगा कि मैं शायद सही में कुछ कर दूँगा उनको या पागल हो गया हूँ मैं, तो वो जाके उन्होंने किसी एडी को बताया कि यार ये इंसान कंट्रोल में तो है ना, इसको पता है ना ये क्या कर रहा है? तो उन्होंने बोला हाँ, नहीं पता है, डोंट वरी, नथिंग विल हैपन। एंड देन आई आल्सो स्पोक टू हर, मैंने उनसे जाके कहा कि मैम आई एम सो सॉरी, मैंने आपको शायद मुझे बताना चाहिए था, बट मैं चाहता था कि सब कुछ ऑर्गेनिकली हो, इसीलिए मैंने आपको नहीं बताया। और फिर इवेंचुअली जो फ़िल्म में हुआ यूज़, वो शायद दूसरा या तीसरा टेक था जिसमें मैंने वो पतीला नहीं घुमाया और चिल्लाया उठ के बस। लेकिन वो जो भी हुआ वो कंप्लीटली अनप्लान्ड था। और इसके लिए भी यू वेंट फॉर 15-20 डेज और समथिंग, आप किधर अपने बर्तन मांजे मैं 100 रुपीज अ डे और समथिंग लाइक दैट, आई वाज रीडिंग समवेयर, हाउ फार इज इट ट्रू, यू टेल मी। इट्स कंप्लीटली ट्रू। आई एक्चुअली पहले तो मैं एक गाँव गया था झारखंड में, चलकरी बस्ती नाम का एक गाँव है। मैंने एक दोस्त बनाया था, मैं मनीष नगर में उस टाइम रहता था, तो अक्षय करके एक बंदा है, तो अक्षय से मेरी दोस्ती हुई और फिर अक्षय ने मुझे अपने गाँव वो लेकर गया, वहाँ पे मैं उसके घर पे रहा और गाँव के सारे लोगों से मैंने दोस्ती की, बातें की कि क्या है उनके विचार देश के ऊपर, इन जनरल ऑन लाइफ क्या है उनके विचार वगैरह। वहाँ पे 20-25 दिन बिता के उनके साथ चीज़ें जान के, लहज़ा सुन के, उसके बाद मैं दिल्ली गया। और जब दिल्ली गया, मेरा पहला प्लान एक्चुअली ड्राइवर बनना था किसी के लिए, पर वो हो नहीं पा रहा था, क्योंकि मैंने जिन 2-3 लोगों से बात किया, वो मेरे दोस्त ही थे। तो फिर मुझे भी लगा यार, मैं दोस्त के पापा के लिए गाड़ी चलाऊँ तो वो सेम चीज़ नहीं होगा। आई नीड टू बी एनोनिमस जब मैं कोई भी काम करूँ। किसी को पता नहीं लगना चाहिए कि मैं एक्टर हूँ। दैट वाज़ द पॉइंट ऑफ दैट एक्सरसाइज़ ना, कि मैं सही मायने में उस चीज़ को एक्सपीरियंस करूँ विदाउट एनी बायस। तो फिर मैं जब सोचा इसके बारे में, मुझे लगा कि यार शायद किसी रेहड़ी पे काम करूँ या ठेले पे काम करूँ, जहाँ पे मुझे कोई जानता नहीं हो, वो मेरे लिए अच्छा एक्सपीरियंस होगा। तो फिर मैंने 2 दिन बिताए, मैं साकेत में उस टाइम रह रहा था, तो मैं सुबह निकलता था, अपने बलराम के कपड़े मैंने मँगा लिए थे, शूट के 2-3 महीने पहले। तो उन कपड़ों में मैं निकलता था और साकेत की चक्कर लगाता था। अलग-अलग रेडियो पे जाके पूछता था कि आप मुझे काम दोगे क्या? आप मुझे काम दोगे क्या? तो काम मुझे ऑलमोस्ट हर कोई देने के लिए रेडी था, पर सब कोई मेरा आइडेंटिफिकेशन प्रूफ माँगते थे। और आइडेंटिफिकेशन प्रूफ में मेरी जो शक्ल थी, वो उस हुलिये से मिल नहीं रही थी। तो मेरे को, और नाम भी उसमें आदर्श गौरव था और मैं सबको बोलता रहा कि मेरा नाम बलराम है। तो मुझे लगा कि वो आइडेंटिटी ना रिवील करने के चक्कर में मुझे ऐसे कोई दुकान को ढूँढना पड़ेगा, जहाँ पे मुझे आईडी ना माँगे, और फिर मुझे ऐसा एक दुकान मिला, जहाँ पे उन्होंने आईडी नहीं माँगी मुझसे। वो दुकान का नाम मत लेना, नहीं तो फिर पुलिस आ उस जाएगी वहां दुकान का पे। नाम ही नहीं है, ओके। तो बेनाम दुकान है। ओके। और कंडीशन बस ये था कि मुझे 50 रुपए कम मिले। 150 रुपए मुझे बाकी लोग दे रहे थे, ये मुझे इन्होंने 100 रुपए दिए। और काम ये था कि झाड़ू पोछा करना है, बर्तन मांजने, और दिन के स्टार्टिंग में जब वो दुकान खोलते हैं, रेडी अपना खोलते हैं, तो जाके उनके लिए चीनी, नमक, जो भी उनके जो रॉ मटेरियल्स हैं, वो उनके लिए लाना होता था। ओ गॉड। तो वहाँ पे मैंने 2 हफ्ते ऐसे काम किए। ये हाउ हाउ डू यू स्नैप आउट ऑफ इट, क्योंकि वो इंटेंस है। आई मीन डज डू यू टेक योर वर्क बैक होम, ऐसा कभी होता है कि दिमाग में जहन में रह जाता है वो चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें, एंड हाउ डू यू कम आउट ऑफ इट। यार एक्टिंग ना बहुत साइकोफिजिकल प्रोसेस है मेरे लिए। हम्म। तो जब मैं कोई इंसान प्ले कर रहा होता हूँ, मैं कोशिश करता हूँ कि मैं उस इंसान की एक हिस्से को पूरी ईमानदारी से अपने अंदर ढाल लूँ। और जब आप वो करते हो ना, तो वो आपको इफ़ेक्ट करती है, ये ज़ाहिर-सी बात है। ठीक है? आप ये छोड़ो, आप 10 दिन अगर आप गर्दन ऐसे करके चलोगे,
तो 11वीं दिन पे अगर आप ऐसे करके चलोगे ना तो आपको अजीब लगेगा। 100%। तो आप सोचो कि एज एन एक्टर हम उसकी वॉक चेंज कर रहे हैं, हम उसकी स्पीच चेंज कर रहे हैं, हम उसकी थॉट पैटर्न चेंज कर रहे हैं, बिकॉज थॉट प्रोसेस जब तक आप चेंज नहीं करोगे तब तक इम्प्रोवाइजेशंस उस पॉसिबल ही नहीं तरीके से लैंड नहीं होती है ना। करेक्ट करेक्ट मैं आदर्श जैसे सोच के बलराम जैसा एक्ट करूंगा तो वो इम्प्रोवाइजेशंस नहीं होंगी जो बलराम कर सकता है, जो बलराम की दुनिया में पॉसिबल है। ट्रू तो जब आप ये सब 2 महीने तक करते हो तो कहीं ना कहीं असर तो करती है। पर हाँ, ये मैं ज़रूर कोशिश करता हूँ अब, स्पेशली थोड़ा, क्योंकि और मैंने इतना समय गुजारा है इन चीज़ों के साथ, मैं कोशिश करता हूँ कि मैं उसको घर ना लाऊं। बट ऑब्वियसली वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी लेवल पे एक चेंज तो लाती है आपके ये में। और यूजुअली ये भी होता है ना कि आप जब किसी रोल को करते हो तो स्टार्टिंग की जो 2-3 हफ्ते हैं वो बहुत क्रूशियल है, क्योंकि आपको पता नहीं है कि आप एग्जैक्टली क्या कर रहे हो, क्या सही है क्या गलत है। आप ट्राई आउट कर रहे हो चीज़ें और डायरेक्टर आपको बता रहा है ये सही है ये गलत है। 2-3 हफ्ते बाद एक रिदम बैठता है, उसके बाद थोड़ा आप बैक सीट हल्का सा है, एक फिफ्थ गियर से फोर्थ गियर पे आते हो कि चलो ठीक है, एक चीज़ जो है वो अगर मेरे को यहाँ से वैलिडेशन मिल रही है और अगर डायरेक्टर कह रहे तो सही हो रहा होगा। एंड उसके बाद यू बिकम अ लिटिल चिल, बट स्टिल बट टाइम तो लगता है टाइम लगता है। इट्स नॉट समथिंग कि आप पहले दिन से जाके एकदम चिल मार रहे हो, ऐसा नहीं। लेकिन 1 महीने बाद डिफरेंस होता है मेरे लिए एटलीस्ट, जो मैं पहले दिन पे होता हूँ वर्सेस डे 35, देयर इज अ बहुत डिफरेंस है ना बहुत नहीं, पर देयर इज अ डिफरेंस। आई डू बिकम अ लिटिल मोर रिलैक्स्ड। यू वेरी अवेयर ब्रो that's very very good to know refreshing because you don't see that very often so refreshing से याद आया let's talk about झारखंड हाँ, पहले थोड़ा let's go back in time let's talk about your days there क्या याद है I think आपको बहुत टाइम हो गया अभी यहाँ पर अब तो 17 साल हो गए हैं। 17 years so it's like a distant memory नॉट रियली, आई गो टू जमशेदपुर एवरी ईयर। अच्छा मेरा नैनीहाल जमशेदपुर से ना, मेरी मम्मी जमशेदपुर में पली बड़ी है। नाना जी जमशेदपुर माइग्रेट किए थे विजयनगरम से 1943 या 44 में। ओके तो मम्मी के साइड का परिवार तब से वहीं पे वहीं है। पर हालांकि हूँ मैं साउथ इंडियन, मैं तेलुगु बात करता हूँ। हाँ, मेरी मदर टंग तेलुगु है। व्हाट आर यू सेइंग हाँ हाँ हाँ, बट मैं पला बड़ा वहाँ पे हूँ। तो जमशेदपुर से आई हैव नेवर गॉन आउट ऑफ टच, आई विजिट जमशेदपुर एवरी ईयर। पिछले साल मम्मी का रिटायरमेंट था तो रिटायरमेंट के लिए वहाँ पे 10-12 दिन हम रुके थे, फंक्शन वगैरह जो भी था। नाना नानी अभी भी वहाँ रहते हैं, बहुत सारा परिवार है मम्मी के साइड का जो अभी भी वहाँ रहता है। कुछ दोस्त हैं जो बिजनेस कम्युनिटी के हैं, जो पढ़ाई लिखाई बाहर करके अब वापस वहाँ चले गए अपना बिजनेस संभाल रहे हैं। बट जमशेदपुर विल ऑलवेज बी वेयर माई रूट्स, वेयर माई रूट्स आर फ्रॉम यार। एंड क्या इट इज सबसे माई ब्लड। सबसे क्या बोलता है चीज है जो आपको बहुत याद है वहाँ की सम मेमोरी दैट यू हैव इन योर हेड ऑल द टाइम आई थिंक एक किस्म का बेफिक्रापन, लाइक वेयर यू डिडंट रियली हैव एनी, where your decisions didn't really have that much of a consequence maybe when you're a kid, and there is a certain kind of freedom that you live your life with. मुझे पढ़ाई लिखाई में कोई दिलचस्पी था नहीं। मेरी दिलचस्पी entirely was to either play or to entertain people. मैं बहुत कहानियां सुनाता था लोगों को बना बना के। और मतलब कहानी खोर पहले से थे हाँ, मुझे कहानी सुनने में और बताने में बहुत मजा आता था। मेरे को याद है, मेरी जब दादी और परनानी आई थी हमारे साथ रहने जमशेदपुर, काफ़ी लंबा 1-2 महीने के लिए दोनों आए थे वहाँ पे। तो मैं कई बार ना नीचे नहीं जाता था खेलने, क्योंकि मैं बैठ के उनकी कहानियाँ सुनता था। वो तेलुगु में बात करते थे अपने गाँव की कहानियों के बारे में, ओके और मैं कोई क्रिकेट खेल रहा होता था, बुलाता रहा, मैं बोलता रहा हाँ मैं आ रहा हूँ आधे घंटे में, क्योंकि मैं उन दोनों की बैठकर कहानियाँ सुनता था। और वो अपने 80s में थे उस टाइम। मुझे बहुत मज़ा आता था। बचपन से मुझे कहानियाँ सुनने और बोलने का बहुत शौक है। हालाँकि फ़िल्म ज़्यादा मैंने देखी नहीं है बचपन से। फ़िल्म्स मैंने लेट टीनेज ईयर्स में देखनी शुरू की। बट रियल स्टोरीज़ आई रियली एन्जॉयड। और बहुत खेलता था मैं सारे स्पोर्ट्स, क्योंकि हमारा बहुत बड़ा कॉलोनी था आशियाना एन्क्लेव नाम का। तो 2-3 ग्राउंड्स थे और हर ग्राउंड पे अलग स्पोर्ट चल रहा होता था। एक ग्राउंड पे क्रिकेट, एक ग्राउंड में खो-खो, एक ग्राउंड में फुटबॉल। और हम उम्र बहुत लोग थे वहाँ पे, मतलब 8 से 14 साल का जो एज ब्रैकेट है उसमें कम से कम भर भर के। 50-60 लोग थे भाई। स्पोर्ट्स डे होता रहा हमारा कॉलोनी में, जिसमें हाउसेज में बट वी वर डिवाइडेड। और जस्ट लाइक स्कूल लिटरली लाइक स्कूल, ट्रॉफीज, मेडल्स, कैप्टन्स, मतलब इट यूज्ड टू बी अ वेरी प्रोएक्टिव कॉलोनी, वेरी प्रोएक्टिव इयर्स ऑफ माय चाइल्डहुड।
And that's what I miss the most, I think, about Jamshedpur and the food. I was just coming to that. What about food? कौन सी चीज़ है जो वहाँ की बहुत पसंद है? भाई unparalleled यार. मेरी गर्लफ्रेंड आई थी अभी 2 साल पहले जमशेदपुर, पागल हो गई वहाँ पे गोलगप्पा खा के. ना इतना कमाल का स्ट्रीट फूड है ना वहाँ पे, क्योंकि कैलकाटा का डायरेक्ट इन्फ्लुएंस है. तो वो गोलगप्पा ही कहते हैं कि पुचका कहते हैं वहाँ? वहाँ गोलगप्पा कहते हैं, कैलकाटा में पुचका कहते पुचका हैं. कहते हैं, ओके. वहाँ के गोलगप्पे, साउथ इंडियन खाना जमशेदपुर का इज बेटर साउथ इंडियन फूड देन lot of, and it's a very Controversial. Be careful. but you know, I've had South Indian and I love mess food from Chennai when I go to Chennai or travel to other parts of Tamil Nadu, even Andhra. I love it. But maybe there it's an innate bias. But मेरे को जमशेदपुर के साउथ इंडियन खाना जैसा कहीं और साउथ इंडियन खाना नहीं लगता है. उसमें नॉस्टैल्जिया भी है ना. शायद वो नॉस्टैल्जिया का मिक्सचर भी है. एक तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट आई एम वेरी सरप्राइज्ड व्हेन यू टोल्ड मी दैट यू आर तेलुगु. मुझे फॉर द लॉन्गेस्ट आई वाज फीलिंग दैट आप झारखंड के हो. हाँ. एंड आई वाज इन माय हेड आई वाज लाइक यू वुड बी स्पीकिंग प्रोबब्ली झारखंड में क्या बोलते हैं, बिहारी, भोजपुरी, मैथिली. मैथिली. I thought you would be that, but Telugu, it's a great surprise, bro. I mean, I must say. Yeah. तो सिंगिंग करते थे, I heard. हाँ, अभी भी करता हूँ. नहीं मतलब, बट सिंगिंग वो टाइम पे तो एकदम फुल पैशनेट सिंगिंग होती थी. मैंने started learning classical when I was 4.5 or 5 years old. मेरे को पढ़ना भी नहीं आता था ठीक से उस टाइम. मैं मम्मी के गोद में बैठ के सुन के गाता था. तो मैंने 10 साल लगभग क्लासिकल सीखा. 8-9 साल मैंने जमशेदपुर में सीखा. फिर जब बॉम्बे आया तो 2007 से 2009 में सुरेश वाडकर जी के एकेडमी में सीखता था. और इट वाज ऑलवेज सिंगिंग फॉर मी. एक्टिंग तो वाज नेवर इवन ऑन द कार्ड्स, और कभी कोई किसी ने सोचा भी नहीं ना कि एक्टिंग इट्स सच अ डिस्टेंट थिंग. आप मैगजीन्स पढ़ते, उस टाइम क्या वो आता था, एक इंडिया टुडे का एक मैगजीन आता था, तो बस मैगजीन में एक्टर्स को देखते. और फिर जब बॉम्बे आए तो 2-3 एक्टर्स को देख लिया सड़क पे, वो पागल हो गए. कौन से थे पहले एक्टर जो देखा? सबसे पहले ना तुषार कपूर, मनीष मल्होत्रा और अक्षय कुमार को देखा था, Oh. अलग अलग जगहों पे. Okay. और विक्रम सलूजा करके एक मॉडल एक्टर हुआ करते थे. Okay. मतलब अभी भी हैं वो, बट अर्ली 2000s एंड लेट 90s में ही वाज अ वेरी पॉपुलर मॉडल एंड एक्टर. तो वो एक अजीब टाइप का एक्सीडेंट था कि क्लासिकल सीखते सीखते प्लेबैक करना शुरू किया मैंने. और प्लेबैक करने के बाद लाइव शोज करने शुरू किए. और उसमें से एक लाइव शो पे किसी ने देखा और पूछा कि एक्टिंग करना चाहते हो, और मैंने हाँ बोल दिया. क्योंकि उस उम्र पे आप जो आए वो आए. और अलग एक कॉन्फिडेंस होता है ना. 14-15 साल के बच्चे का तो एक अलग ही ये होता है कि हाँ सब कुछ कर ये लेंगे. प्यूबर्टी वाला कॉन्फिडेंस. हाँ कि भाई तुम आ जाओ. हाँ. अभी मेरे आर्मपिट में बाल आ गए. I will not be talking about something else. वो पेंसिल वाली मूंछ आ गई है. अब I can conquer the world. सही में. So it was really just that confidence and that carefree feeling that led me into acting here. And one thing led to the other, one audition led to the other. My Name Is Khan happened, and it was very strange. And फिर classical से I got into a lot of rock and prog rock in college. I used to sing for a prog rock band called Oak Island. Okay. तो EP हमने बनाया कि Aliens Can't Jump करके 4 गाने रिलीज किए. Progressive rock is a great genre, bro. Yeah. Any band that you listen to? So we were very heavily influenced by Carnival. Oh, Carnival is a great band. एक बार मुड़े में बजाया वो लोग. अरे जानते हो, अरे वाह क्या बात है यार. Good. Amazing. This Porcupine Tree also. Yeah. So we were inspired by bands like Carnival, Porcupine Tree, Tool, Opeth, Dead Letter Circus. Bro, Tool का नया एल्बम सुना? कब लास्ट ये कुछ तो some Fear Inoculum करके some. Fear Inoculum तो बहुत पुराना है. नहीं, लास्ट ईयर आया 2023 में यार. Fear Inoculum तो 2009 या 10 में आ गया था. That's you're talking about 10,000 days. नहीं वो वाले 10,000 days Fear Inoculum came. Let's do a check. Maybe I'm wrong, but I remember listening to Fear Inoculum very. But hard album है bro. Very hard album है. Tool is a great, like Tool's bass playing and Tool's उसके vocalist जो उनका Maynard है ना, जो vocalist. अरे उसके 2-3 बैंड है. 2019. Sorry, my bad. 2019. होती है गलती. अच्छे एक्टर से भी गलती होती है. It's okay. But हाँ, you know, Mike Tyson से कोई नहीं बोलता कि यार तू बॉक्सर है, एक पंच मार के दिखा. But since you mentioned that you are a singer as well, तो मैं पूछ सकता हूँ कि यार just a few lines if you want to, if you don't want to. जरूर. Yeah. Anything that you want to sing that is on top of your head, I would love that. Because now you said मेरा favorite bands के नाम ले लिए. Tool, Opeth, PT. पर हिंदी में गाओ चलेगा? जिसमें भी गाओ यार.
अम, एक ना कल मेरे को अचानक ये गाने का याद आया जो उसमें था वो अम, कौन सा फिल्म था यार राणा दग्गूबाती जिसमें दम मारो दम मारो दम उसका एक JQ हाँ दैट्स अ ग्रेट सॉन्ग ना आए हो ना आओगे न फोन पे बुलाओगे न शाम की करारी चाय लबों से यूं पिलाओगे न आए हो न आओगे लबों से यूं लगाओगे रात की नशीली बाय से नींद में जगाओगे गए हो क्यों रात बाकी है गए हो क्यों साथ बाकी है तुम गए हर बात बाकी है गए क्यों Hey. Hard bro, hard. You have a great voice bro. थैंक यू सिंगिंग भी परस्यू कर सकते थे बट अच्छा हुआ नहीं मतलब because अभी कर रहा हूँ मैं अच्छा अभी कर रहा हूँ एक्टिवली कर रहा हूँ मैं ओफ के साथ हमने गाना रिलीज किया जिसका नाम बेचैनी है ब्रो उसके सारे गाने खो गए हम कहाँ के क्या हाँ, है Killers. इट्स बाय ओफ ओनली राइट हाँ भाई ओफ dude all the हो songs गए हम कहाँ एंड गहराइयाँ Niraya also yes both are off yes but especially Oaf and Savera are brilliant. Like both of them are such brilliant musicians, and they both sing, produce, play, compose, write. That's very hard to do. Yeah. Do all five things. let's talk about Hostel Days yeah Huh. I mean first season so great उसमें मेरा नाम था आपका नाम in the show Dopa you became then what happened why did you leave Hostel Days I did 2 seasons of Hostel Days. I think for me it was just a matter of like I didn't know what else I could frankly contribute to Ankit's character. 2 season तक मैंने जो explore किया मेरे को लगा कि I think this is all that I could have done with Ankit. You know, beyond that it felt like I don't know. So I thought that maybe I should try out other characters in newer avenues. ये थॉट आया कि अब तो मेरे को फिल्म्स करनी है मतलब वो थॉट तो हमेशा बिकॉज से था। बिकॉज वो टाइम पे आई थिंक जस्ट सीजन 2 जब रिलीज हुआ था तब उसके पहले तक व्हाइट टाइगर आ गई थी नहीं उसके जस्ट बाद उसके बाद है December 2020 season 2 released and 2021 Jan a month later White Tiger. ओके So yeah there were lots of more opportunities that came my way and I yeah strictly from an actor's perspective it's always fun when you play a new character when you play a fresh character ना because आपको नहीं पता ये इंसान कौन है अंकित एक तरफ से आप एक तरीके से आपने एक्सप्लोर कर लिया 2 seasons तक 6 एपिसोड तो आपको पता है कि ये इंसान ये है और ये यही डिसीजंस मेक कर सकता है बट जब नील परेरा मेरे को मौका मिला करने का खो गए हम काम में आई डेंट नो एनीथिंग अबाउट दैट you know so that became very exciting for me the prospect of working on my physique for 1.5 years and playing a calisthenics trainer became I was obsessed by that entire you know that during that time for 1.5 years there was nothing else that I was thinking about I didn't expect you would go ripped bro matlab I had to na because I of can't be a calisthenics trainer and look like this पेट लेके खड़ा हो तो ब्रो मैं मार लूंगा पेट तो मेरा कभी नहीं था I've always been lean but like I still needed to be very shredded and you know and to अचीव दैट इन 1.5 years क्योंकि जो कलिस्थेनिक्स जो नील परेरा की बॉडी है और जो है जो कलिस्थेनिक्स ट्रेनर होते हैं वो 10 साल वर्कआउट करके वहां पहुंचते हैं मेरे को 1.5 साल मिले थे 10 साल की बॉडी बनाने के लिए और 10 साल की टेक्निक को जस्टिफाई करने के लिए सो आई हैव so you could do that flag वाला thing you can do आई कुड डू मसल अप्स आई कुड डू रिंग बहुत मसल difficult है यार फ्लैग हाँ ना फ्लैग इज इनसेनली डिफिकल्ट बहुत difficult है साहब वेरी डिफिकल्ट बट मसल अप्स भी बहुत डिफिकल्ट very difficult I cracked muscle ups, I cracked ring muscle ups, I cracked L-sit to shoulder stand on the bars. तो देखा मैंने वीडियो देखा तुम्हारा हाँ। that you had put up so what was more difficult building muscles or acting with Ananya Pandey यार अनन्या it's a joke Honest of course. क्या है? she's a great actor she she killed it in the film by the way. control in Khogam. in Khogam she killed it I think she is the best actor of her generation, one of the best female actors of her generation. Hmm. And I feel like with time people will agree with me more and more. Okay. You know, initially when I was sharing this, people thought that maybe I had a bias because she was my co-actor. But I genuinely believe that she's a very, very solid actor. She's very humble. She's very observant. She's very empathetic. She's very smart about how she does things, you know. And so is Sid. Like I
feel like I was very, very lucky to work with like two of the brightest actors almost from my generation. Through that. And Arjun, then, you know, it was his first film, but like the guys made such a beautiful and nuanced film, you know. And then we were so lucky to be blessed by Zoya Akhtar being the producer. It was just such a complete experience for me. That's why you are here, and that's why you took that risk of playing Jugnu in Guns and Gulabs. Yeah. Tell me about that. उसको क्या कहते हैं उसको? Gender identity crisis. Is that the right thing to say? Yeah. उसकी identity का issue है उसको, right? He Yeah. identifies himself Yeah. as something else. Yeah. As a And trans woman. It's only if you give a second watch that you realize कि हाँ यहाँ पर breadcrumbs डाले हो हाँ. कि इसका ऐसा ऐसा है. Starting से समझ में नहीं आता वो. हाँ. But वो बहुत nuanced you played है. Tell me about that. उसकी prep क्या किया? यार उसकी prep was majorly, you know, just understanding what an obnoxious person would be like in the 80s, whose father is like an opium king. So a lot comes from imagination. The personification and the character, the demeanor of it came from a couple of real people. Tej Pratap Yadav was one of my inspirations. Okay. I found him very interesting. He's a very interesting human being, and very enigmatic. Tej Pratap Yadav, the way he talks, you know, he's got something very magnetic about him. True. Good orator and very entertaining. तेज प्रताप यादव, आप कभी उनके इंटरव्यू से बोर नहीं हो सकते हो. True that. और सर्टन चीजें थी उनकी जो मुझे बहुत पसंद आई, जो वहां से मैंने चुराई, यू नो. एंड आई थिंक वही होता है, आप जब कोई कैरेक्टर प्ले करते हो, आप यहाँ से 5% चुराते हो, यहाँ से 10% चुराते हो, यहाँ से कुछ चुराते हो, और जो कंबाइन जो चीज होती है वो आपकी होती है. तो prep for that was very interesting, and we shot for it in 2021. Or, you know, again, to work with Rajan DK was was a dream, man. And that was the first time जहाँ मैंने audition मेरे को नहीं करने गया. They didn't ask me to audition. और मैं इतना shocked था और इतना डरा हुआ था कि यार आपने audition बिना करके मेरे को कैसे ले लिया. Trust. मतलब अगर कल मैंने कुछ खराब कर दिया तो फिर क्या होगा, क्योंकि मेरे को तो यही लगता था पहले. क्योंकि वो difficult role भी था, वहाँ पे फैलने का बहुत जगह था. If you see कि बहुत स्कोप था वो हर चीज थोड़ा एक एक्सटेम्पो करके करें, हाँ, तो फैल जाता था. तो हाउ डू यू अंडरस्टैंड कि इतना ही करना है? डिड राजन डी के सब ट्रायल एंड एरर. हाँ, ऑफ कोर्स, कि ये ज्यादा हो रहा है, इसको थोड़ा कम कर. इट्स दैट्स व्हाट ना, जो पहले जो 10 दिन 15 दिन आता है ना, वो बहुत क्रूशियल होते हैं, जहाँ पे आप ट्राई कर रहे हो. क्योंकि थिएटर नहीं है ना, जहाँ पे जब आप स्टेज पे जाते हो, आप 2 महीने रिहर्स करते हो, तो आप उसको रिफाइन कर रहे हो, आप तराश रहे हो उस चीज को. लेकिन जब आप कैमरा पे एक्ट कर रहे हो, अगर आप लकी हो आपको वर्कशॉप मिलते हैं, अगर लकी नहीं हो तो आप सीधा शूट पे पहुंचते हो. आप सीधा शूट पे पहुंच के अपने बाप से मिलते हो. ये इंसान मेरा बाप है. आज का बाप है, आज का बाप है. आज मैं अपने बाप से पहली बार मिल रहा हूँ और मैं 25 साल का आदमी हूँ. You know, it's a very strange experience, which is why everything is so trial and error, which is why the role of a director is so important. कि उसको क्लैरिटी होनी चाहिए. He's the person who's looking from outside, na. He's the person who spent 2 years with this. He's the person who spent 2 years with every character. You have spent 3 months or 2 months or 1 month with only your character. So the vision that he has, you will never be able to have. तो आप एक तरीके से अपने कैरेक्टर के बारे में बहुत बड़े कैनवस पे आप सोच के आते हो, करते हो, और फिर उसको तराशा जाता है, सिजल किया जाता है, जहाँ पे डायरेक्टर बोलता है नहीं, दिस इज टू मच, और दिस इज, यू नो, why don't you try something else, or, you know, this doesn't make sense over here. What makes Rajan DK so great? Their sense of humor. हाँ ना, they're very funny people, very funny people, very sarcastic, very funny. Never seen them get angry, extremely level headed in spite of being so busy. यार उन्होंने, मेरे को नहीं लगता पिछले 5 साल में ब्रेक लिया है. फैमिली मैन सीजन 1 के बाद I have not seen them take a break. सांस ही नहीं लिया है भाई. फैमिली मैन सीजन 1, सीजन 2, फर्जी, गुलकंदा टेल्स, गन्स एंड गुलाब, सिटाडेल, कितनी चीजें बना ली है 5 साल में. If you think about it, it's insane. It's insane. Their track record, and all of them are good. All of them are good. तो आपने सिटाडेल देखी कि नहीं? मैंने एक एपिसोड, पहली वाली एपिसोड देखी, बाकी मुझे देखनी बाकी है. बट व्हाट अ शो यार. मजा आ गया मुझे, मजा ही आ गया. And I feel like that is there in every show of theirs, you know.
they lend what their energy is to the show, you know, their वो flavor. दिखता है हाँ एंड राइट फ्रॉम द फर्स्ट और फिल्म कमाल शोर की इन द बात है सिटी कि से देख सकते हो 99 99 भी यस 99 शोर इन द सिटी जेंटलमैन। और कमाल की बात क्या पता है, वो हिंदी में नहीं बात करते, तेलुगु उनको हिंदी आती नहीं है ठीक से। इंग्लिश इंग्लिश हाँ इंग्लिश और तेलुगु। हिंदी मतलब ऐसे नहीं कि बिल्कुल नहीं आती है, आती होगी, पर उन्होंने वो तिरुपति के पास पले बड़े हैं और वो अमेरिका चले गए थे अपने इंजीनियरिंग के बाद काम करने, तो हिंदी सीखने की गुंजाइश ही नहीं थी ना। उनकी भी स्टोरी मस्त है एक्चुअली कड़क स्टोरी है। बहुत सही स्टोरी है उनकी एक्चुअली ये सब देख के ना यू फील लाइक यार यू कैन डू इट द थिंग इज कि इफ यू हैव परसिस्टेंस कि भाई मेरे को ये बनाना है मेरे को अच्छा लगता है करने को दे केम बैक दे मेड देयर फर्स्ट फिल्म फिर वापस गए नेक्स्ट लेवल You have to be slightly delusional हाँ to be an artist of any kind। थोड़ा डिलुलू होना जरूरी है, क्योंकि अब एक प्रैक्टिकल इंसान ऐसा करियर नहीं चुन सकता। जब आप ऑड्स और इवेंट्स मेजर करते हो, प्रोज एंड कॉन्स मेजर करते हो, सक्सेस एंड फेलियर मेजर करते हो, फेलियर्स आर हियर एंड सक्सेसेस आर हियर ना। आउट ऑफ एवरी 1000 failures, there are 5 success stories, and we hear about those 5 success stories. We don't know how many people came to Bombay, failed and went back, but we know about Akshay Kumar and we know about Shah Rukh Khan. We know about Dilip Saab. So you have to be slightly off and slightly delusional to think and to believe and then to become something like this. You know? Speaking of Shah Rukh, you did a film with him. You played a young Shah Rukh. That was my first film. Yeah. That was the first film. How was that? यार that was तो You met शाहरुख खान को मिले? मैं पिछले साल दिसंबर में उनको पहली बार मिला। Shit. पिछले साल आचीज के प्रीमियर के बाद आई वाज इन प्रतीक्षा एंड देयर वाज अ स्मॉल गैदरिंग ओवर देयर और नव्या का बर्थडे था, तो वहाँ पे मैं शाहरुख सर से पहली बार मिला एंड इट वाज इनसेन। Magnetic, no? लग गए? मतलब एवरी स्टोरी दैट यू हर्ड अबाउट हिम इज द सेम। what I will say is what everyone else has said. It's unbelievable that energy that man has, and at 58, 59 odd years, it's insane the energy with which he operates and the interest that he takes in a human being. And he doesn't have to. है ना? उनको क्या फर्क पड़ता है? But मैं this तो is what I've थक जाऊंगा never यार, met him. मैं थक जाऊंगा अगर मेरे को इतना ये करना हो। आप कितने लोग को कितना टेंशन दे सकते हो, और वो सबको देते हैं, सबको। कोई रैंडम इंसान भी अगर मेरी जगह वहां होता ना और उनको जाके उनसे बात करता, वो आधे घंटे उनसे बात करेंगे। कौन करता है भाई? और कोई कैमरा नहीं है वहां पे, दिखाना भी नहीं है किसको। किसको दिखाना है? ये तो मैं आपको आके बता रहा हूँ, नहीं बताता तो आपको नहीं पता चलता। Agree. वो उनको अंदर से वो है, वो जेन्युइन इंटरेस्ट है उनको लोगों में, तभी वो ऐसे कलाकार है ना। इफ यू आर नॉट जेन्युइनली इंटरेस्टेड इन पीपल ना, you cannot be an actor. You have to be genuinely, and his interest in people is another level. Another level only. The way he observes people and the interest that he takes in getting to know an individual, no matter who he is. This is small segment that we do. This is not. I'm not. मैं ये क्वेश्चन नहीं पूछ रहा, ये सब ऑडियंस ने पूछा है। हम लोग ने बताया था कि आदर्श गौरव आने वाले हैं, तो उन्होंने थोड़े बहुत क्वेश्चंस भेजे हैं। So I would like to ask that. तो पहला ही है, अंकित पांडे को क्यों चेंज किया गया? वो एक डायलॉग था ना हॉस्टल डे सीजन 3 में कि कॉलेज के 3rd ईयर आते आते लोगों के असली चेहरे बाहर आ जाते। Good one. Good one. White Tiger was concerned by many people. I have known to be very anti-Indian kind of film. What are your honest thoughts on the same, Mr. Adarsh Gaurav? It was condemned and it was called anti-Indian. Yeah. I don't think it's anti-Indian here. I feel like the thing is that when somebody is critical about the country, that doesn't mean that they don't love their country. In fact, for me, it means that they love their country more because they're genuinely concerned about the things that are happening in the country. Na? With आप क्रिटिकल किस चीज़ के बारे में होते हो? जिसके बारे में आप केयर करते हो। अगर आपकी ओपिनियन है किसी के चीज़ में, किसी चीज़ के बारे में, वरना ओपिनियन ही ना है तो फिर आप केयर ही नहीं करते हो ना। So I understand what people feel, you know, when people see poverty being shown on screen and people see India being portrayed in a certain light. I understand them being hurt, but that is also the reality of the country ना। True. अगर आप ट्रेन में बैठ के ट्रैवल करो, आप
बॉम्बे के बाहर चले जाओ तो अलग एक इंडिया दिखता है ना आपको कई जगहों पे। तो it's a reality, and I feel like also when you are sometimes, as I said about when I spoke about desensitization, जब आपके इतनी सामने इर्द गिर्द कॉन्स्टेंटली आप चीज़ें आपकी होती हैं, आपको कई बार चीज़ें दिखती नहीं है या subconsciously you're not registering it, and sometimes it takes a man who's not an Indian to come here and be like To point that out. to point that out for you, and when that's pointed out it hurts. Okay. Last two. Just so many on your hostel days and what do you call it? White Tiger. So many of them. मैंने सब पूछ लिया अभी मैं और क्या पूछूं उसमें. Okay. Adarsh, what's your view on recent mainstream Bollywood blockbusters like Animal, Pathan, Gadar 2? Do you really consider them as good films or something like that? Or something like that should be accepted just to keep the industry running? See, my opinion doesn't matter. Honestly, I feel like if there is a reason why these films are working, it makes sense. 100%, bro. What you said was right. Your opinion doesn't matter ना. मेरे कुछ बोलने ना बोलने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा. Correct. तो हाँ, these films are working, and in a way it's good because it provides that kind of cash flow in the economy. But I also, having said that, I also feel that there should be specific centers and places or theaters that should be exclusively made for films that are independent. You know, जैसे क्योंकि आजकल तो OTT भी नहीं ले रहा है यार वो सही सारी में। फिल्में. वो फिल्में अभी हाउ डू यू रीच मूवी 10,000 सिनेमा के नर्ड्स जो है ना पूरे देश में वो वो देखते हैं. आई स्वेयर यार. Movie is not a thing that Mainstream. everybody knows of. So there has to be, yes, a platform, and also I feel like each center, each city deserves a couple of theaters or centers where these films are screened, because ऐसी type की centers ना कभी खाली नहीं जाएंगी. Every city will have its own cinephiles and cinema nerds that will ensure that these places will run to full capacity. जैसे आराम नगर में भी है एक दो चीज़ें जहाँ पे ऐसी कई सारी स्क्रीन्स होती है छोटी छोटी, बट आई फील लाइक दे शुड बी अ लिटिल मोर बिगर एंड दे शुड बी पॉपुलराइज्ड मोर. एक जगह हो जहाँ पे ऐसी टाइप की फिल्म्स को जगह मिले, ऐसी टाइप की एक्टर्स को जगह मिले. It should not be a project. You can't define a film by the amount of money it makes. You know, I don't think that that's my opinion. I don't think nobody has to know what kind of money a film is making, especially as an actor. It's not my concern. You know, I feel like my concern is to do the best. जो मेरे को जो काम दिया गया as a character वो मैं करूँ, ना कि मैं ये बात करूँ कि या ये सोचूं कि ये फिल्म कितना कमाएगी. That is a producer's concern. You know, if everybody does their job well, automatically the film will make money. I agree. So yeah, that's One last one, and then we wind it up. yeah. Guns and Gulabs का season 2 कब आ रहा है? भाई मैं भी चाहता हूँ कि बहुत जल्दी है. पहले तो शूट करना पड़े, अच्छा पहले लिखना पड़ेगा. अच्छा राइटिंग भी नहीं हुई अभी तक. पता है, आई डोंट थिंक शुरू हुई है या इतना सारा काम कर रहे हो लोग, कैसे होएगा? वही ना. है ना? बट अभी जो मैंने सुना है लास्ट के दे आर थिंकिंग अबाउट इट, सो आई होप दैट इट हैपेंस very very soon. I hope it happens and we get to see Jugnu again. Thank you so much for your time. Pleasure man, Adarsh pleasure. Gaurav, it was मजा आ गया, lovely speaking. मजा आ गया. Lovely Thank- speaking. हेलो एवरीबॉडी, मेरा नाम आदर्श गौरव है और मुझे मज़ा आ गया अंकित के साथ बात करके. प्लीज़ सब्सक्राइब टू डिजिटल कमेंट्री एंड शो अस योर लव.